हेलो दोस्तों, वेलकम टू झरवाल एकेडमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झरवाल ग्रेविटी। टुडे वी विल सी द चैप्टर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सीबीएसई सेमी एंड इंग्लिश मीडियम। सो द टुडे's chapter is electric current or current electricity. As we know that electric current or current or simply electricity, electric potential, power, these are the very important thing in our day-to-day life. We are using this electricity for various purposes in our day-to-day life, to operate all the appliances in our home, as well as to do all the mechanical work like fan, refrigerator, cooler, AC. All these things, all these appliances requires the electric current, or simply we can say it current. But what is exactly mean by current, and what are the topics which are related to the current? We are going through these various topics step by step today. So today's chapter is electric current, and this chapter consists of lots of topics, but in this lesson we only go through these topics, that is states of matter, types of material, electric current, electric circuit, electric potential and Ohm's law. तो आज अपन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले। उससे पहले अपन उसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पावर क्या है, वैट, एम्पियर, वोल्ट क्या है। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो आज अपन ये जो सारे आपके जो भी टॉपिक्स है कि जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, तो उसको अपन आज दूर करने का प्रयास करेंगे। तो एंड तक देखिए पूरा वीडियो। सो इलेक्ट्रिक करंट जब भी सामने आता है तो आपको पता है कि जो भी बड़े होते हैं घर में, तो वो बोलते हैं कि इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ। क्योंकि क्या होता है कि जब अपन कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई अप्लायंसेस को हाथ लगाते हैं, तो लगभग उसके अंदर जो बहुत सारी परेशानी आती है। बड़ों को डर लगता है कि कहीं इसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। तो ज़्यादातर पेरेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हाथ लगाने से बच्चों को मना करते हैं। पर आज ये जो आपने अगर पूरा वीडियो एंड तक देखा, तो आपके जो कंसेप्ट्स है वो पूरे इसमें से जो है क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले अपन जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हाउ मच आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? देयर आर जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज द सॉलिड, सेकंड इज द लिक्विड, and third one is the gases. So these are the 3 states of the matter, and again there were 2 states of matter which are discovered earlier. Fourth is the Bose and Einstein condensation, and fifth one is the plasma. So total today there are 5 states of the matter: solid, liquid, gases, Bose and Einstein and plasma. These are the states of matter, which we can distinguish between these 3 states of matter with the help of their interatomic distance, as well as their size, as well as interatomic space, etc., etc. We can simply distinguish between solid, liquid and gases on the basis of different kind of theories. Or we know that what is meant by solid, what is liquid, or what is gases. Out of these 3 stages we go through in detail about the solids. So what are the types of solid, or what is exactly mean by the solid? यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ कि सपोज ये जो है ये सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? तो सॉलिड के अंदर होते हैं एटम्स। सॉलिड्स के अंदर होते हैं एटम्स, इनको बोलते हैं एटम्स। और एटम्स के अंदर आपको पता है कि क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते, प्रोटॉन्स होते, न्यूट्रॉन्स होते, और न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द एटम्स। अब ये 2 एटम्स के अंदर का जो डिस्टेंस है, 2 एटम्स के अंदर का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और ये जो 2 एटम्स है, these 2 atoms are
bounded by some force, and that force between the two atoms is called as interatomic force. So the distance between two atoms is interatomic distance, and the force between two atoms is interatomic force. So this is about the solid. Again there are three main types of the solid. सॉलिड के जो है तीन मेन टाइप होते हैं. सॉलिड के अंदर आप अगर गए तो सॉलिड्स, तो उसके अंदर फर्स्ट जो है वो है मेटल्स, इसको अपन कंडक्टर्स भी बोलते हैं. दूसरा जो आता है वो है सेमी मेटल्स, या फिर इसको मेटलॉइड्स भी बोलते हैं, या फिर इसको सेमी कंडक्टर ऐसा भी बोलते हैं. और तीसरा जो टॉपिक आता है वो है नॉन मेटल. नॉन मेटल को नॉन कंडक्टर ऐसे भी बोलते हैं. सो these are the three main type of the solid on the basis of conductivity, that is metal, semi metal and non metal. These are classified on the basis of only their conductivity, on the basis of conductivity. So on the basis of conductivity, solids are classified into three main groups: metals, semi-metals and non-metals. So what are the properties of metal, semi-metal or non-metal, or why they are called as conductors, semiconductors or non-conductors? First main property is the metals or conductors are the good conductor of heat and electricity. Heat और electricity का ये क्या होता है? Good conductor. So all the metals are the good conductors of heat and electricity. Semiconductor में क्या होता है? Semiconductor have the less conductivity of heat and electricity than the metal. और non metal में क्या होता है? तो non metal have near about no conductivity of heat and electricity. So we can say that non metals are the bad conductor of heat and electricity as well as heat. So this is the difference between conductors, semiconductors and non-conductors. अभी इसमें बहुत बच्चों को जो दिक्कत आती है वो ऐसी है कि कंडक्टर के अंदर मतलब मेटल के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो नॉन कंडक्टर में नहीं होता है, कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है या फिर हीट फ्लो होती है, बट नॉन कंडक्टर से नहीं होती है. तो ये क्या चीज है? तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और सिंपली ऐसा बोलते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पर ऐसा नहीं है. दोनों में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं. पहला जो है अपन देखेंगे मेटल्स. यहाँ पे मैं मेटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ. दिस इज मेटल, दिस इज सेमी मेटल, और ये जो थर्ड है ये नॉन मेटल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल के अंदर क्या होते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये ज्यादा होते हैं. सेमी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते, बट नॉन मेटल के अंदर बहुत ही कम होते पर क्या होते? निग्लिजिबल. द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल्स आर वेरी लार्ज. इन सेमीकंडक्टर मॉडरेट, एंड इन नॉन मेटल्स दे आर निग्लिजिबल. ठीक है, तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल में बहुत ज्यादा होते हैं, सेमी मेटल में कम होते हैं, और नॉन मेटल में लगभग ना के बराबर होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं. तो अभी ये ज्यादा होने से, कम होने से और एकदम कम होने से इलेक्ट्रिसिटी पर इसका असर क्यों पड़ता है? बहुत लोग इसके बारे में बोलते नहीं है. आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पर इसमें कोई ऐसा बोलता नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या रीजन क्या है कि जिसकी वजह से मेटल में ज्यादा करंट फ्लो होता है, सेमी मेटल में कम होता है और नॉन मेटल में ज्यादा होता है.
तो ये क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। तो एक एग्जांपल आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कोई चीज़ है, अगर मेरे हाथ में डस्टर है और ये मुझे 1 किलोमीटर तक लेके जाना है और मेरे पास 1 किलोमीटर के लिए इसको भेजने के लिए मेरे पास 100 बच्चे मेरे आजू बाजू में खड़े हैं। मैं एक लाइन में उनको खड़ा कर लूँगा, मैं इसको उठाऊंगा, दूसरे को दूंगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, तो एकदम फास्ट से 1 किलोमीटर तक एकदम जोर से ट्रैवल हो जाएगा। पर अगर मेरे पास 100 बच्चे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 85 बच्चे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 2 बच्चों में डिस्टेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे भागते भागते दूसरे के पास जाना पड़ेगा, फिर दूसरा तीसरे के पास जाएगा, तीसरा चौथे के पास जाएगा, चौथा पांचवें के पास जाएगा, और इसको फ्लो होने में जो है वो टाइम लगेगा। और जो लास्ट वाली केस है उसमें मेरे पास 100 बच्चे भी नहीं है, 50 भी नहीं है, सिर्फ 5 ही बच्चे। तो 1 किलोमीटर पे लेके जाना है, 5 बच्चों को लेके जाना है, तो एक पहला जो है वो 200 मीटर का अंतर भागते भागते जाएगा, फिर दूसरा और 200 मीटर तक भागते भागते जाएगा। तो ये टाइम में क्या होगा कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ है, ये जो इसको भेजने का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, कम है, तो उसकी वजह से मैं उसको जोर से नहीं ले जा सकता। तो ये असर है। या फिर इसको दूसरा एग्जांपल अगर आपको देना है तो आप कौन सा दे सकते हो, अगर साइकिल है 100 साइकिल, फॉर एग्जांपल 100 साइकिल एक लाइन में खड़ी है, और साइकिल को, पहले साइकिल को अगर मैं क्या करता हूँ, धक्का देता हूँ, और उसके बाजू में दूसरी साइकिल है तो वो गिरेंगी, दूसरे के बाजू में तीसरी साइकिल है तो वो भी गिरेंगी, तीसरे के बाजू में चौथी साइकिल है तो वो भी गिरेंगी, और ये पूरे के पूरे 100 साइकिल जो है वो एकदम क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो जो एनर्जी मैंने धक्का दिया, मतलब एनर्जी फर्स्ट साइकिल को दी, तो वही एनर्जी लास्ट साइकिल तक क्या होती गई, ट्रैवल होती गई। क्यों? क्योंकि अंदर क्या थे, बहुत सारे साइकिल थे। तो इलेक्ट्रॉन प्ले द सेम रोल लाइक द साइकिल्स। When the number of electrons are larger, then electric energy can travel very easily from one point to another point. But when the number of electrons are very less, at that time the distance between two electrons is very large, so it is unable to flow the fast electricity or the total electricity. So the metals flows the large amount of electric current, but semi-metals flows the less amount of current because of the less number of electrons. But non-metal consists of very negligible number of electrons, so it is unable to flow the energy from one point to another point because there is the gap between the two electrons is very large. So therefore we can't transfer the energy from one point to another point in the easy manner. That's why the non-metals are the bad conductor of electricity, and this is the biggest feature or the property of the metal, semi-metal and non-metals. तो ये देख के आपको ध्यान में आ गया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कैसा प्ले करता है रोल मेटल्स के अंदर, सेमी मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर। तो ये जो आपने अभी तक देखा, ये जो पूरा था, ये सब जनरल इंट्रोडक्शन था। क्योंकि ये अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल अपन ने देख लिया, स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिया। अभी ये जो 4 पॉइंट है ये सिलेबस के पॉइंट है। तो यहाँ से अभी चैप्टर जो है अपना स्टार्ट होगा। तो अपना